इस ਵੇਲੇ देख रहे हो NRI तो पिंड ਉਹ बुलेटिन जो कि प्रदेश ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੱਕ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ NRI ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ। बुलेटिन की शुरुआत करांगे इंडो US ट्रेड डील दे नाल। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾ ਕੇ 18% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਬਰੂਕ ਰੋਲਿੰਸ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਤੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੌਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕਣ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇੰਡੋ US ਦੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁੱਲ ਬੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁੱਲ ਬੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁੱਲ ਬੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਦਸ਼ੇ ਵੀ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਡੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੌਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਟਵੀਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਔਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਪੁੱਲ ਵੀ ਬੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। अमेरिका के एग्रीकल्चर मंत्रालय से एक ट्वीट आता है जिससे ये क्लियर किया जाता है, उन्होंने स्पष्ट कहा अपने ट्वीट के अंदर कि भारत के अंदर अमेरिका के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक बहुत बड़ी मंडी मिल गई है। हमारा जो एग्रीमेंट था वो कंप्लीट हो चुका है, ये बात उन्होंने कही। और उनके साथ साथ वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात कही वो भी सुनने वाली है और देखने वाली है। उन्होंने भी ये बात कही कि अमेरिका के किसानों को, अमेरिका को अब जो भारत के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है उससे 45 लाख करोड़ रुपए का अमेरिका को फायदा होगा। ये पूछना चाह रहा हूं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ समय पहले जब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की बात कर रहे थे, पूरा देश उसके खिलाफ बोल रहा था, उस समय इन्होंने ये बात कही कि हम किसी भी कीमत पे अमेरिका के सामने झुकेंगे नहीं। हमारी केंद्र की सरकार जो बार बार ये कह रही है, बाहर जाकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। अगर भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो भाई संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर सवाल पूछा जा रहा है, उस सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा? ना देश को बताया जा रहा है, ना पत्रकारिता की लाइन के लोगों को बताया जा रहा है। कहीं पे हमारे देश के प्रधानमंत्री इसके ऊपर बोल क्यों नहीं रहे? भारत के किसान को कितनी सब्सिडी दी जा रही है और उनको कितनी सब्सिडी मिल रही है?
जिनके साथ आप भारत के किसानों का मुकाबला करवाने जा रहे हो, इस तरीके से भारत के किसान की बर्बादी, भारत की एग्रीकल्चर की बर्बादी करने का काम कर रहे हो आप। ये किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਡੀਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਦਸ਼ੇ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਸੰਸਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ट्रेड डील के खिलाफत की गई है और रोज जाहिर इन्हां दे वल्लों कीता गया है। तो अमरीका दे नाल जो भारत दा ट्रेड डील हुई है उस दे खिलाफ आम आदमी पार्टी दे वल्लों भी प्रदर्शन किए गए ने और इस दे नाल किसान भी इस तो निराश नजर आ रहे ने। हम तो लड़ाई लड़ रहे थे मिनिमम सपोर्ट्स प्राइस हमारे किसानों को मिले। ये तो पूरा जो एग्रीकल्चर हमारा सेक्टर है देश का उसको तबाह करने वाली डील है। जैसा संजय जी ने बताया, मीत जी ने बताया, हम सदन से लेकर सड़क से लेकर हर जगह इसका विरोध करेंगे क्योंकि ये एग्जिस्टेंस को बचाने की, हमारा देश एग्रीकल्चर बेस्ड है। हम किसानों मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये उनकी रोजी रोटी, पहले मनरेगा ख़त्म किया, अब ट्रेड डील के माध्यम से जो कम से कम मूल्य मिलता था किसान को, छोटे जो सबसे छोटा जमींदार है किसान है, वो भी खत्म किया जा रहा है। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। भारतीय पक्ष अपने संवेदनशील क्षेत्रों विशेषकर कृषि और दुग्ध क्षेत्रों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने में सफल रहा है। अमेरिकी पक्ष के भी कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो उनके दृष्टिकोण से संवेदनशील थे। लगभग 1 वर्ष तक चले कई दौर के विचार विमर्श के बाद दोनों वार्ताकार दल द्विपक्षीय व्यापार समझौते के कई क्षेत्रों को अंतिम रूप देने में सफल रहे। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਈ ਸੰਦੇਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਯੂਐਸ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ और खतरा भी दसिया जा रहा है किसानों को खतरा होगा इस दे नाल। अमरीकी समान सस्ता होने दे नाल भारती बाजार तबाह हो सकता है। डेयरी सैक्टर नूं वड्डा नुकसान होगा, यह भी किसानों का खदशा है और खुराक खेतर दे विच भारत की आत्मनिर्भरता खत्म होगी। तो एक पासे तो भारत की आत्मनिर्भरता की गल की जाती है और दूजे पासे किसानों को इस गल का डर है कि इस दे नाल आत्मनिर्भरता ते भी इस सट की तरह काम करेगी। ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਡੇਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਨ ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਡੇਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਯੂਐਸ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ खतरा है। तो ये तमाम खदशे जिहड़े ने किसानों के मनां दे विच ने जिन्हां नूं लैके ही जो भारत के किसान ने और जो पंजाब के भी किसान ने वो इस यूएस इंडो ट्रेड डील का विरोध कर रहे हैं और इन्हां दे हक दे विच किते ना किते नितरदे आ रहे आम आदमी पार्टी के जो MP ने उन्हां दे वल्लों प्रदर्शन किए गए हैं जिस दी तस्वीरां भी तुसीं देख सकते हो। तो ट्रेड डील ते जो किसानों के खदशे है एक और खबर का रुख करते
एक महत्वपूर्ण सुधार दे वजों वेखे जाण वाले कदम दे वल पाकिस्तान सरकार ने करतारपुर कॉरीडोर आर्ट गैलरी दे विच महान सिख जरनैल सरदार हरी सिंह नलवा दी मूर्ति लगाउण दी इजाजत दे दित्ती है, जो कि खैबर पख्तूनखवा सूबे तो विवादपूर्ण तौर ते उन्हां दे बुत नूं हटाए जाण तो लगभग 3 साल बाद कीता गया है। इस विकास दा दुनिया भर दे सिख संगठनां दे वल्लों व्यापक तौर ते स्वागत कीता गया अते इस खेतर दे विच सिख इतिहास अते विरासत नूं मानता देण वाल एक सकारात्मक कदम दस्सिया जा रहा है। इस मूर्ति का उद्घाटन 1 फरवरी नूं अमरीका दे विच सिक्स दे प्रधान गुरिंदर सिंह जॉन्स दे वल्लों एक सोशल मीडिया पोस्ट दे विच कीता गया। इस नूं ऐतिहासिक पल दसदे होए जॉसन ने कहा कि एक कदम उन्हां खेतरां दे विच सिखां दे योगदान नूं मानता देण अते सन्मानित करन दे एक नवे युग दी शुरुआत कर सकता है। उधर भारतीय अमरीकी विश्व बैंक के प्रधान अजय बंगा ने पाकिस्तान के पंजाब दे विच अपने जद्दी घर का दौरा किया। 66 साला बंगा लाहौर के नेड़े इस्लामाबाद तो लगभग 250 किलोमीटर दूर खुशाब गए, जिथे उन्होंने अपने जद्दी निवास के नाल संबंधित सारे मालिया रिकॉर्ड की समीक्षा की। दौरे दौरान बंगा ने गुरुद्वारा सिंह सभा खुशाब विखे किए गए विकास कार्यां अते प्रशासनिक उपावां की भी प्रशंसा की है। गुरुद्वारा धार्मिक विरासत की रखिया अते सिख श्रद्धालुओं के लिए सहूलतां नूं यकीनी बनाउण दे लई अंतरराष्ट्रीय मापदंडां के अनुसार उपाय कर रहा है। बंगा पाकिस्तान के 4 दिना उच्च पद्धरी दौरे ते ने, जो कि बुधवार नूं समाप्त होवेगा। उधर आस्ट्रेलिया तो एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। आस्ट्रेलिया के मेलबर्न दे विच चोरा ने महात्मा गांधी की 426 किलोग्राम वजन वाली एक कांसी की मूर्ति चोरी कर ली है। यह मूर्ति आस्ट्रेलियन इंडियन कम्यूनिटी सेंटर के बाहर स्थापित की गई सी। यह मूर्ति नवी दिल्ली स्थित इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशनशिप के वल्लों तोहफे वजों दी गई सी। यह आस्ट्रेलिया दे विच भारतीय भाईचारे के लिए सभ्याचारक इतिहासक अते प्रतीकात्मक महत्व रखती है। इस मूर्ति का उद्घाटन 2021 आस्ट्रेलिया दे विच कीता गया सी अते 24 घंटिया पहला अणपछाते व्यक्तियों के वल्लों इसकी भंनतोड़ की गई है। लेबरन पुलिस के अनुसार 3 अपराधियों ने 426 किलोग्राम की मूर्ति नूं इसकी नींह तो कट्टण दे लई एंगल ग्राइंडर की वरतों की। सोशल मीडिया ते घूम रही फोटोज दिखाउंदियां ने कि मूर्ति गिट्टियां वाली थां तो कट्टी गई है, जिस दे नाल साइट ते सिर्फ मूर्ति दे पैर ही बचे ने। शहर दे स्क्रैप मैटल डीलर्स नूं चेतावनी दी गई है कि वह कांसी दी मूर्ति नूं वेचण की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति ते नजर रखण अते किसी भी शक्की गतिविधि की तुरंत रिपोर्ट करन। चोरां दी पछाण अनजान है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है। उधर खबर आस्ट्रेलिया तो है, जिथे एक 13 साला लड़के ने बहादुरी की मिसाल पेश की है। उसने अपनी मां अते भैण भरावां नूं बचाउण दे लई 4 घंटे तैर के काम किया, जो कि उन्हां दी किश्ती पलटण तो बाद 14 किलोमीटर दूर वह गई सी। एक 13 साला आस्ट्रेलियाई मुंडे ने खतरनाक शाक प्रभावित पानियां दे विचों 4 किलोमीटर तैर के अपनी मां अते 2 छोटे भैण भरावां दी जान बचाई। यह घटना पश्चिमी आस्ट्रेलिया दे क्विंडलप बीच दे नेड़े जियोग्राफ बे दे विच वापरी है, जदों परिवार पैडल बोर्डिंग ते कायाकिंग करने वास्ते पहुंचा होया सी। वो छुट्टियां मनाउण दे लई पर्थ तो लगभग 250 किलोमीटर दक्षिण दे विच क्विंडलप आए सी। शुरू दे विच मौसम शांत सी, पर तेज हवावां अते लहरां दे करके उन्हां दा पैडल बोर्ड अते कायाक जिहड़ा है वह गया। ऑस्टिन ने कायाक छड़ दिता अते तैराकी शुरू कर दी। शाक प्रभावित पानियां दे विच लगभग 4 किलोमीटर तैराकी की गई। उसने पहले 2 घंटियां दे लई लाइफ जैकेट पाई, पर उसनों एहसास होया कि यह उसनों होर हौली कर रहा है उसकी रफ्तार अते वो किनारे तक नहीं पहुंच सकेगा। इस लई उसने इसनों उतार दिता और अगले 2 घंटियां दे लई वो बिना किसी लाइफ जैकेट तो तैरदा रहा। उधर खबर चाइना दे नाल जुड़ी हुई है। एक चीनी नागरिक मैक्लोडगंज दे विच 5 महीनों तो बिना वीजा दे रह रहा सी। पुलिस ने मामला दर्ज करके अते जांच शुरू कर दी है। एक विदेशी चीनी नागरिक ते धर्मशाला दे मैक्लोडगंज दे विच लगभग 5 महीनों तो रह रहा होने का इसका मामला सामने आया। बिना किसी वैध भारतीय वीजे दे चीनी नागरिक 90 दिनों के नेपाली टूरिस्ट वीजे ते भारत आया सी, पर वैध दस्तावेजों तो बिना। इस तो इलावा वो मैक्लोडगंज दे विच दाखिल होया, जो कि तिब्बती अध्यात्मिक आगू दलाई लामा दा एक निवास है।